Hello everyone. So today we will be looking into section 2, subsection 19 to subsection 28. So I request you all to kindly open your Bear Act and follow accordingly. I'll also be sharing my screen with you all. Okay, so we'll see section 19. Section 19 is man. So man means male human being of any age. So this section is wide because it includes man of all age. So even if there's a child of 4 years of age, he is a man. He'll be considered to be a man. However, it does not include a child in the mother's womb. Okay. So a man means male human being of any age from 0 to whatever 100 plus years. A human being who is a male gender is a man. We come to subsection 20. Subsection 20 is month and year. Wherever the word month or the word year is used, it is to be understood that the month or the year is to be reckoned according to the Georgian calendar. So, in Sanhita, जहां भी कहीं month यानी महीने और ईयर यानी साल की बात हो रही है, तो हम कौन सा कैलेंडर रेफर करेंगे और फॉलो करेंगे? हम जॉर्जियन कैलेंडर को रेफर करेंगे. हर कंट्री का अपना एक कंट्री का कैलेंडर होता है जो यूजुअली हम घरों में फॉलो करते हैं. जैसे रीजन का स्पेसिफिक कैलकुलेशन होता है, सन का, मून का. यू ऑल्सो हैव लूनर कैलेंडर, सोलर कैलेंडर. तो हम उन चीजों को ना फॉलो कर करके एक जो यूनिवर्सल कैलेंडर जो हम फॉलो करेंगे ऑल अक्रॉस इंडिया whenever it comes to Bharatiya Nyaya Sanhita, तो वो है Georgian calendar. Now we come to subsection 21. Subsection 21 talks about movable property. Let us read the section first. Movable property includes property of every description except land and things attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth. तो movable क्या है? Movable plain meaning इसका ये है जो चल सके, जो चल संपत्ति होती है. Movable property चल संपत्ति होती है, जो हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, जो मोबाइल होती है, जो पोर्टेबल होती है. और ये क्या इंक्लूड करती है? प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन. हर तरीके के जो चल संपत्ति है, जो चल सकती है, जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाई जा सकती है, उसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं. एक्सेप्ट क्या? लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ. तो जमीन और जमीन में जो गड़ी हुई चीजें हैं, जो जमीन से लगी हुई जो चीजें हैं, उसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बोलते हैं. जो परमानेंटली जमीन में लगी हुई हैं, गड़ी हुई हैं, उन चीजों को हम मूवेबल नहीं बोलते, उनको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं. तो अब यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं. एक जमीन पे एक बहुत बड़ा पेड़ टिका हुआ है, लगा हुआ है जमीन के अंदर. तो क्या वो मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है? The answer is जब तक कि वो जमीन से लगी हुई है तब तक वो immovable है. It is permanently fixed to the ground. तो that is not a movable property. It is an immovable property. लेकिन तो जैसे ही हम उस पेड़ को काटते हैं तो क्या होता है? वो बन जाता है movable property. The moment we cut the tree which is attached to the earth, it becomes an immovable property. आप उसको एक जगह से फिर दूसरी जगह पोर्ट करके ले जा सकते हो. Another example would be golds and diamonds. Gold और diamond जमीन के अंदर होती है. As long as it is buried, it is under the earth. गोल्ड या डायमंड है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है. लेकिन जैसे ही हम उसको खोद के बाहर निकालते हैं और पोर्ट करते हैं, then it becomes a movable property. All right. So अब हम चलते हैं on section 2, subsection 22, which talks about number. So let's read the section. Number. Unless the contrary appears from the text, word importing the singular number includes the plural number, and word importing the plural number includes the singular number. तो सिंगुलर नंबर जब हम कहते हैं तो उसमें प्लूरल नंबर भी आ सकता है, और जब हम प्लूरल नंबर की बात करते हैं तो उसमें सिंगुलर नंबर भी आ सकता है. Now we come to subsection 23. The subsection 23 talks about oath. So oath includes a solemn affirmation substituted by law for an oath, and any declaration required or authorized by law to be made before a public servant or be used for the purpose of proof, whether in a court or not.
जब हम ओथ की बात करते हैं तो ओथ ऑल्सो इंक्लूड सोलमन अफर्मेशन। सोलमन अफर्मेशन क्या है? फॉर्मल डिक्लेरेशन दैट समथिंग इज ट्रू। तो जब हम ओथ की बात करते हैं तो ओथ हम लेते हैं किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने। क्यों? इट इज टू बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्रूफ। हम इसको प्रूफ की तरह यूज करते हैं। जब भी हम कोई एफिडेविट फाइल करते हैं कोर्ट में तो आप देखो कि उसको हम ओथ कराते हैं फ्रॉम द ओथ कमिश्नर। तो ओथ कमिश्नर उसको फॉर्मली स्टैम्प करता है, मीन्स यू स्वेयर दैट वट एवर यू आर प्रोवाइडिंग, वट एवर हैज बीन रिटन इन द एफिडेविट, इट इज ट्रू एंड इट इज फॉर्मल डिक्लेरेशन दैट द स्टेटमेंट्स पुट इन द एफिडेविट इज ट्रू. Now we come to subsection 24, which deals with the term offense. Except in the chapter and section mentioned in the subsection A and B, the word offense means anything made punishable by this Sanhita. So anything which is made punishable under the Sanhita is an offense as per subsection 24. But it also has a saving. The word but is used. When something is not an offense, we'll look at subclause A. So in subclause A, when we talk about these mentioned sections and subsections, the word offense means a thing punishable under this Sahita or under any special law or under local law. So anything which is punishable under this Sahita or either under special law or either under any local law, that will also be an offense. It will come under the definition of offense. Now let us see subclause B. Subclause B, these are the section mentioned, and for these section, the word offense shall have the same meaning when the act punishable under special law or local law is punishable under such law with imprisonment of a term of 6 months or more, whether with or without fine. For these provided sections, the word offense shall have the same meaning when the act punishable under special law and local law is punished under such law with imprisonment of for the term 6 months or more, whether with or without fine. So, as far as special laws are concerned or the local law is concerned, वहां पे लोकल लॉज के अंदर और स्पेशल लॉज के अंदर जिस भी चीज के लिए पनिशमेंट दी गई हुई है 6 महीने या 6 महीने से ऊपर, वो भी ऑफेंस के कैटेगरी में आएगा. सबसेक्शन 25 टॉक्स अबाउट ओमिशन. ओमिशन का क्या मतलब होता है? ओमिशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ नॉट इंक्लूडिंग समथिंग और समवन. ओमिशन को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 144 के अंदर आ गई है. तो उसमें क्या था? उसमें हमने देखा कि मेंटेनेंस देना अपनी वाइफ को, चिल्ड्रन को इम्पोर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, ए इज अ फादर और उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी वाइफ और बच्चों को मेंटेन करे, उनको खाना पानी कपड़ा मकान जो बेसिक नेसेसिटी है वो प्रोवाइड कराए. लेकिन अगर वो ये नहीं करता है, नहीं करने का मतलब वो ओमिट कर देता है, वो नहीं करता ये. वैसे ही जब ओल्ड एज पेरेंट्स हैं तो उनको मेंटेन करने का दायित्व होता है उनकी डॉटर एंड सन दोनों का ही. तो अगर वो ओल्ड एज में अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखते हैं तो ये एक्ट विल कम विद इन द पर्व्यू ऑफ ओमिशन. दे आर ओमिटिंग ऑन डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन. Okay, so now we come down to subsection 26. Subsection 26 is person. Person includes any company or association or body of persons, whether incorporated or not. पर्सन का मतलब सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग नहीं होता है, इसका मतलब ये भी होता है एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स कंपनी. कंपनी भी पर्सन है. एक एसोसिएशन है, कुछ लोगों का ग्रुप बना हुआ है, तो वो भी एक पर्सन के कैटेगरी में, पर्सन के डेफिनेशन में आता है. कुछ लोग एक साथ एक गुट है तो वो भी पर्सन के डेफिनेशन में आता है अंडर भारतीय न्याय संहिता, whether incorporated or not. Now we come to subsection 27 is public. Public includes any class of public or any community. So public का क्या मतलब होता है? Public का मतलब होता है कोई एक particular class of public, जैसे एक गुट की बात करी है या कोई कम्युनिटी है, तो वो भी पब्लिक के डेफिनेशन में आएगी. अब आ जाते हैं सबसेक्शन 28 विच इज पब्लिक सर्वेंट. पब्लिक सर्वेंट
means a person falling under any of the description, namely, अब पब्लिक सर्वेंट कौन होते हैं? तो सबसेक्शन 28 सब क्लॉज ए से जो स्टार्ट होते हैं, जितने लोग इनकॉर्पोरेटेड हैं, वो सब पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन के अंदर आते हैं। और ये कौन कौन से लोग हैं? एवरी कमीशन्ड ऑफिस इन द आर्मी, नेवल, एयरफोर्स। तो आर्मी, नेवल, एयरफोर्स में जितने भी ऑफिशियल्स हैं, वो क्या है? वो पब्लिक सर्वेंट होंगे। एवरी जज, इंक्लूडिंग एनी पर्सन empowered by judge to discharge, whether by himself as a member or any body of person, any एजुकेटरी फंक्शन का क्या मतलब होता है? एजुकेटरी फंक्शंस होता है वो प्रोसेस जिसके थ्रू दो लोगों के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करते हैं। तो जज के डेफिनेशन के अंदर हमने देखा आर्बिट्रेटर्स भी आते हैं, सरपंच भी आते हैं, पंचेस भी आते हैं। तो जो हर जज है और हर वो इंसान जिनको लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा पावर है कि वो कोई एजुकेटरी फंक्शन कर सकते हैं, ऐसा कोई इंसान, वो भी जज के कैटेगरी में आता है। हु इज अ जज? जज इज अ पब्लिक सर्वेंट। Next, we see subclause C. Subclause C is every officer of a court. Every officer of a court, including a liquidator, receiver, commissioner, whose duty it is as such officer to investigate or report on any matter of law or fact, or to make, authenticate, or keep any document, or to take charge or dispose of any property, or to execute any judicial function, or to administer any oath, or to interpret or to preserve order in the court, and every person specially authorized by the court to perform any of such duties. So public servant के definition के अंदर और कौन आते हैं? हर वो officer of the court पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन के अंदर आता है, जो ओथ लेते हैं, जो ऑर्डर रिजर्व पे रखते हैं एंड एक्सेप्ट। सबक्लोज डी कहता है एवरी असेसर और मेंबर ऑफ अ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट इज अ पब्लिक सर्वेंट। असेसर कौन होता है? असेसर कोई एक एक्सपर्ट होता है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो एक्सपर्ट होता है उसको असेसर बोलते हैं। तो वो असेसर भी पब्लिक सर्वेंट है। और मेंबर ऑफ अ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट और पब्लिक सर्वेंट, कोई भी एक मेंबर जो है, जो कोर्ट को या तो असिस्ट कर रहा है या तो पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट कर रहा है, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन के अंदर आता है। इसके अलावा कौन पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन के अंदर आता है? एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू हुम एनी क्लॉज और मैटर हैज बीन रेफर। हर आर्बिट्रेटर एक पब्लिक सर्वेंट है। इसके अलावा कौन? हर वो इंसान जिसके पास मैटर को भेजा गया है, जिसके पास मैटर को भेजा गया है, रेफर किया गया है, या रिपोर्ट किया गया है बाय द कोर्ट, वो भी पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन के अंदर आते हैं। और एनी अदर कंपीटेंट पब्लिक अथॉरिटी, या कोई और अन्य कंपीटेंट पब्लिक अथॉरिटी है, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन के अंदर आती है। इसके अलावा क्या आता है? एवरी पर्सन हु होल्ड्स एन ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज empowered टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। हर वो व्यक्ति जिनको ये पावर दिया गया है कि वो किसी को पकड़ के रख सकते हैं, किसी को कन्फाइन करके रख सकते हैं, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन के अंदर आते हैं। इसके अलावा कौन है? सब क्लॉज जी ऑफ द गवर्नमेंट, एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंस, to give information of offense, to bring offender to justice, और protect the public health, safety and convenience। तो हर वो इंसान पब्लिक सर्वेंट है। इसके अंदर कौन आ गए? पुलिस ऑफिशियल्स आ गए। पुलिस ऑफिशियल के सारे ही जो रैंक्स है और हायरार्कीज है, वो सारे इनकॉर्पोरेटेड है इस सेक्शन के अंदर। इसके अलावा कौन है पब्लिक सर्वेंट? कौन और हो सकते हैं? Subclause H, every officer whose duty it is as such officer to take, receive, keep, expand any property on behalf of the government, or to make any survey, or to investigate or to report on any matter affecting the pecuniary interests of the government, or to make, authenticate, or keep any documents relating to the pecuniary interest of the government, or to prevent the infraction of any law for the protection of pecuniary interests of the government। So पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन के अंदर वो ऑफिशियल्स भी आते हैं जिनको अपॉइंट किया गया है और जो ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट
असेसमेंट कराती हैं या कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ये सारे सारे लोग भी पब्लिक सर्वेंट के कैटेगरी में आते हैं। नाउ वी कम डाउन टू सब क्लॉज आई ऑफ सब सेक्शन 28। सब क्लॉज आई क्या है? सब क्लॉज आई सेज every officer whose duty it is as such officer to take, receive, keep, expand any property, to make any survey, assessment, or levy any rate or tax for any secular common purpose of any village, town, district, or to make, authenticate, or keep the document for the assessment of the right of the people of any village, town, and district. So H talks about the higher level of the government, or it's a bigger thing. और I जो है, it talks about official working at the village and town or the district level. तो इसमें बस इतना ही फर्क है कि ये गवर्नमेंट लेवल पे, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल की बात करता है, और ये विलेज लेवल, टाउन लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रहा है। Now we come to subclause J. Every person who holds any office by virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain, or revise an electoral roll, or to conduct an election or part of an election. तो ये भी पब्लिक सर्वेंट के कैटेगरी में वो आता है। तो हर वो ऑफिसर जो कि इलेक्टोरल रोल को बनाता है, पब्लिश करता है, उसको मेंटेन करके रखता है, उसको रिवाइज करता रहता है, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट के कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट वी कम टू के, एवरी पर्सन। इनमें फर्दर दो सब कैटेगरीज दी गई हूं। एवरी पर्सन in the service or pay of the government or remuneration by fee or commission for the performance of any public duty by the government. अगर गवर्नमेंट किसी भी ऑफिशियल को पे करती है एज, या फिर रेम्यूनरेशन देती है या कमीशन देती है किसी काम को करने के लिए गवर्नमेंट के लिए, तो वो इंसान भी ऑफिशियल है। एनी पर्सन हु इज पेड बाय द गवर्नमेंट इज ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट। So the next is in the service or pay of a local authority as defined in clause 3L of section 3 of the General Clauses Act, a corporation established by or under a central or state act, or a government company as defined in clause 45 of section 2 of the Companies Act 2013. ये जो अथॉरिटीज है, ये कॉरपोरेशंस जो है, ये जो कंपनीज है, ये भी पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन के अंदर आती हैं, राइट? सो नाउ वी कम टू द एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन है जो हम देख लेते हैं। अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन मेड इन दिस क्लॉज आर पब्लिक सर्वेंट वेदर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और नॉट। तो it's not important that they are appointed by the government or not, they will be a public servant under this definition. Next we see every person who is in actual possession of the situation of a public servant, whatever legal defect there may be in his right to hold this situation, is a public servant. So हर वो इंसान जो पब्लिक सर्वेंट के पोस्ट या पोजीशन में या सिचुएशन में एक्चुअल पोजेशन में है पब्लिक सिचुएशन के, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट है। नेक्स्ट इज इलेक्शन। Election means an election for the purpose of the selection of member of legislative, municipal, or other public authority of whatever character. The method of selection to which is by or under any law for the time being in force. को इलेक्शन का यहाँ पे मतलब बता रहे हैं। ये इलेक्शन मीन्स एन इलेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ, किस पर्पस के लिए? फॉर इलेक्टिंग एनी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और एनी पब्लिक अथॉरिटी। उनको इलेक्ट करने का जो मेथड है, उनको जो सिलेक्ट करने का जो मेथड है, उसको हम इलेक्शन कहते हैं। So that was all for today. We shall see the further sections in subsequent lecture. Till then, take care of yourself.